ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੋਰਨੇ ਆ। ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਸੰਗਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਇਸਾਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਖਚਕਿਆ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 10-15 ਦਿਨ। ਪਿਛਲੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹਿਦ ਮੇਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਮਾਨਵੀਅਤ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਜਮਨ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੁਸੰਨਫੀਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਕਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਕਾਲੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਸਦਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਪਨਾਹ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਰਵਿਸ਼ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢਵੇਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ, ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਸ਼ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਪਨਾਹ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਰ ਟੂਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਖੇੜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਔਰ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करना है और टली का बटन भी दबाना। रब रखा। बहुत सारी चीज़ें हम जो लेफ़्ट के ऊपर लाद देते हैं, वो जो सारा एक समाजी और आलमी पस मंज़र होता है उसको हम फरामोश कर देते हैं। देखें, पाकिस्तान जो है ये ब्रिटेन वुड सिस्टम की पैदावार है। जब 44 में वो वहाँ बैठे, दूसरी आलमी जंग वो जीत चुके थे, तो अमेरिकनों ने तो ऑर्डर किया एक कि भी आप 9 आबादियाती ताकतों को कि आप ये अपना बोरिया बिस्तर समेटें अब यहाँ से। अब कॉलोनियलिज्म की ज़रूरत नहीं है, अब न्यू कॉलोनियलिज्म का इरा है और हमने उसको शुरू कर दिया है। और ब्रिटेन वुड सिस्टम को आप सब लोग जानते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब हार्ड करेंसी नहीं होगी, पेपर करेंसी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा होगी, IMF होगा, वर्ल्ड बैंक होगा। इंडिया भी ऐसे तो इंडिया भी इसी तरह बना जी। दूसरी बात यह है कि जब हम ये सारी सिचुएशन पे बात करते हैं तो हम इस पार्टीशन को भूल जाते हैं कि ये जो 1947 की पार्टीशन है ये इंडिया की पार्टीशन नहीं है,
یہ تو پنجاب کی پارٹیشن ہے یا پھر بنگال کی پارٹیشن ہے. تو پنجاب کے اندر کتنے مسلمان تھے جو بائیں بازو کی پالیٹکس کے اندر تھے؟ صفدر میر صاحب کا یہ تھیسس ہے کہ 90% جو کیڈر تھا کمیونسٹ پارٹی کا وہ مائگریٹ کر گیا، اور اس 90% کے نتیجے کے جو خلا تھا اس کو کس نے پر کیا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس پنجاب کے اندر جہاں ساری نیشنلٹیز کی بھی بات ہوئی، تو پنجاب کے اندر جو سماجی تبدیلی کا بوجھ ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک بالادست قومیت بھی ہے، ایک بڑی قومیت بھی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی نیشنلٹی ہے. تو اس پنجاب کے اندر جب ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا کو پھر انہی لوگوں نے پر کیا جن پہ آج ہم تنقید کر رہے ہیں. یہاں پارٹیاں بنی، لوگوں نے جدوجہد کی، لیکن وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ نیو کالونیلزم جو تھا، جس کے مقاصد کے لیے یہ سارا کچھ ترتیب دیا گیا تھا، اس میں یہ اجازت نہیں تھی کہ اس پاکستان کے اندر کوئی بائیں بازو کی پارٹی، کوئی بائیں بازو کی تحریک ڈیولپ ہو. اب راول پنڈی کانسپائریسی کیس پہ، یعنی کہ یہاں تک کہ حسن ناصر کو کیوں شہید کیا گیا، صرف اتنی بات تھی کہ وہ روسی سفیر سے ملے، انہوں نے کہا کہ بھی ہم ایک نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، آپ اپنی حکومت کو کہیں کہ وہ ہماری اکنامک معاملات میں ہماری مدد کریں. تو بھٹو صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے، جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ ہے، ہم آپ کے ملک سے تیل نکالیں گے. اتنی سی وجہ تھی، لیکن یہ بھی امریکہ اور CIA کو ان کے لیے برداشت نہیں. ان تمام لوگوں کو، حالانکہ اس پاکستان کے اندر خود لیاقت علی خان کی حکومت ان لوگوں سے رابطہ کر رہی تھی جو تاشقند میں رہے تھے. ان میں سب سے بڑا نام ملک فضل اللہ قربان کا ہے، جو کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر. داری نوکراں نیم گشادہ مراداں نیم ناری نیم شفاں. اس کا اردو کہہ تو بہتر ہوگا. کہتے ہیں کہ آدھے پلنگوں پہ ہے اور کوئی آدھی رات کو روتا ہے، کوئی ایک نوالے کے لیے ترس رہا ہے، تو کوئی نوکر چاکروں کے مالک ہے، تو کسی کے پاس عیش و عشرت ہے اور کسی کے پاس نالہ و فریاد. اسی طرح اس سے آگے جاتے ہیں. میں پاکستانی سماج کی مختلف چیزیں آپ کے سامنے کرتا ہوں. پنجابی میں بابا فرید کہتے ہیں کہ پنج رکن اسلام دے تے چھیواں فرید ٹک دے جے لبے نہ چھیواں تے پنجے جانے مک. پھر ہم جب جاتے ہیں سندھ کی طرف تو ہمیں وہاں پر 17ویں صدی میں 18ویں صدی میں شاہ عنایت کا جو کھیڑی سن پائے. جی اچھا، اب یہ پاکستان کے سماج کے اس پس منظر میں پہلے ہم کتاب پہ بات کریں گے، پھر ہم جو اس کتاب میں ہمارے پاکستان کی چیزوں کی کمی ہے وہ اس منظر میں تھوڑی سی بات ہوگی. اس کتاب میں کمیونسٹ پارٹی کا قیام، اس پر پابندی، کانگریس میں لوگوں کا جانا، مسلم لیگ میں جانا، پھر قیام پاکستان، پھر یہاں پر پارٹی کا قیام، پھر یہاں پر پابندی، پھر یہاں پر کامپرس پارٹیوں اور پیپلز پارٹی اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم در تقسیم ہونا، پھر بچے کچے لوگوں کا بھی الگ سے جو ہے نا گروہ اور اس کو شکل میں آ جانا. سوویت یونین کے پھر انہدام ہوتا ہے، اس کے بعد NGOز کی یلغار ہوتی ہے، اور NGOز کے یلغار میں ہمارے بہت سے کامریڈ کھو جاتے ہیں. اب اس صورتحال میں جب نئے صورتحال دیتے ہیں کہ آج کا مہذب دنیا کی چہرے دستیاں ہم سب کے سامنے ہیں، تیسری دنیا کی بدوزیاں بھی ہمارے سامنے ہیں، ارد گرد کی بدصورتیاں بھی ہمارے سامنے ہیں، چاروں اور پھیلی ہوئی ظلم، زیادتی اور زوراوری کی داستانیں بھی ہمارے سامنے ہیں، مفلوق الحال عوام کی صورتحال بھی ہمارے نظر میں ہے، بے چین طلباء بھی ہمارے سامنے ہیں، بے قرار مزدور بھی ہمیں نظر آتے ہیں، تباہ حال کسان کا قصہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. نظریات سے
नज़रियाती से नज़र आते लोगों का सफ़र भी हमारे सामने है। सियासी कारकुनों से अकीदा परस्ती तक का सफ़र भी हमने देखा है, जहाँ पर ज़राअत को कारपोरेट फार्मिंग खाने के लिए तैयार है, लैंड रिफॉर्म्स और ज़री इस्लाहत के नाम अब किसी की ज़बान पे नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी मज़दूर के लिए स्पेस कम करती जा रही है। मौजूदा जो सरफेस पे सियासी पार्टियां हैं, वो मफावदात के तहफ़्फ़ुज़ के ग्रुप बंदियों में बटे हुए हैं। सियासी माहौल का फ़िज़ा वहाँ पर नज़र नहीं आता, और तरक्की पसंद ग्रुप कोनों कुदरों में बैठे हुए राग अलापने के बजाय आगे आने के लिए, सरफेस पे आने के लिए तैयार ना हो। तलबा की सियासत पे पाबंदी हो, मजदूर अंजुमनें नज़र ना आती हो, किसानों की कोई तंजीम बाकी ना रही हो, वहाँ पर कुछ दोस्तों की मौजूदगी जो यहाँ पर है, वो ये एक एहसास दिलाती है। और फिर उन पर ये जो किताब है, मैं ये समझता हूँ कि ये हवा का ताज़ा झोंका है, और इस किताब पढ़ने से मुझे छोटी की है, लेकिन मेन फोकस रखा है कि भाई अभी बात यहाँ हो रही थी कि नौजवान नहीं, अभी भी हमारे जो है लेफ्ट के अंदर एक ताने के तौर पर एक दूसरे को लो जी, ये तो सारे लेफ्ट नौजवान की तरह, तो वो तारीख को नहीं देखते। चले पाकिस्तान की, तो उसमें दुनिया भर की तारीख को नहीं देखते। तो एक तो उसको एड्रेस कि भाई वो तमाम सवाल कि भाई मार्क्सिज्म की असलियत आज के हद में, उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी असलियत क्या है, और ये जो जवाब है कि सोवियत यूनियन के या फ्री मार्केट इकोनॉमी के बाद ये जो सवाल खड़े हुए हैं, ये एंड ऑफ द हिस्ट्री भी अभी रवि साहब ने उसका क्योंकि तस्करा किया, वो कहीं हमारे खैर उसने वो वापस भी ले लिया। ये है वो असलियत, ये है वो रेलिवेंस जिसने साम्राज्य के बहुत बड़े लखारी फुकुयामा को, मैं उस हवाले से उसको कहता हूँ, जब वो तारीख में कहता कि नहीं भाई ये सब दूसरी दुनिया तो ख़त्म हो गई, अब तो सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसी की दुनिया वगैरह वगैरह जो भी है चलेगी, तो उसने उसे वापस लिया, मोल्ड किया, बदला। ये है मार्क्सिज्म की असलियत। तो उसमें हमने लिखा है, उसको तो कोई जबर नहीं ना उसके ऊपर के वापस चले, तो उसकी चले। मैंने तो भी चंद दिन पहले एक मजमून में लिखा है कि भाई उसे कोई शर्म होगी तो उसने कम से कम ये तो मान लिया ना कि भाई मेरा नुक्ता नज़र इस तरह, हम तो वो भी नहीं मानते। हाँ, हमने ये तमाम सवालात जो हैं कार फील्ड के अंदर नौजवान क्यों नहीं हैं तहरीक के अंदर, ये तो 100 साल पीछे बैठे हैं, ये तो डॉगमेटिक हैं वगैरह, ये सोवियत। जब हम तारीख की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आज की बात करो तारीख उससे मतलब पिछली तमाम हिस्ट्री। ये कल भी हमने कहा था कि ये जो होती है तारीख है, ये तो इंसान की याददाश्त होती है, और अगर याददाश्त इंसान का ब्रेन या याददाश्त ख़राब हो जाए तो इंसान किसी काम का नहीं रहता। तारीख के बगैर कोई तहरीकें ज़िंदा नहीं रह सकती। उसमें ये तो नहीं है कि सब हरा हरा है, तो पूरी तारीख के अंदर बहुत कुछ गलत भी है, और पाकिस्तान के तरक्की पसंदों से हमसे हर लम्हे गलती होती है। तो वो जो गलतियाँ हैं, हमने अपनी गलतियों को भी इसमें निशानदेही की है। तो किताब लिखने का मकसद ये था कि हम अपने आज की नस्ल को उन सवालात का जवाब दे सकें जो हमें फील्ड में जाते हुए फेस करना पड़ रहा है, हमारे नौजवानों को या हमारे चूँकि जो भी लोग काम करते हैं, हम उन्हें सल्यूट करते हैं इस सूरत की कि आज भी इस शहर में जो लोग खड़े रहे सोवियत यूनियन के डिबेकल के बाद, तो वो तमाम लोग उन्होंने बहुत उनकी रिस्पेक्ट हुई। अभी बल्कि क्योंकि रवि साहब ने एक बात की, बाकी कल अगर आप उसको बिल्कुल देखें तो उसमें अभी भी मेरे दोस्त
मेरे कान खींच रहे थे सारा दिन कि भाई आपने उसको रिएक्ट क्यों किया। एक आदमी तमस्कर उड़ा रहा है और ऊंची ऊंची वो कर रहा है आखिरी सवाल के ऊपर, तो भाई हम अपने उन लोगों के तमस्कर नहीं उड़ाने देंगे जिनके लिए हमें बेपनाह रिस्पेक्ट है। ये अगर मैंने वो सुन के करना है, और अब इख्तलाफ करने का हक हासिल है, और बात करने का भी कोई सलीका होता है ना। आमिर साहब ने बहुत सी बातें की जिससे हमें इत्तेफाक नहीं है, अमर राना साहब भी करके गए, लेकिन एक सलीका है ना, कि तरीका है ना, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र रखा है, हमें बेपनाह रिस्पेक्ट है उनके नुक्ता नज़र की, हमें अपना इख्तलाफ करने का भी हक है। तो मस्कराना, तो मैंने इसलिए ये तो आज बात हुई तो इसमें एक मजमून लिखा है कि मार्क्सिज्म के साथ तमाशबीन रवैया नहीं अपनाया जा सकता, ये इसका हेडिंग है एक मजमून का। तो वो तमाशबीन रवैया कल फेस करना पड़ा, हमारे दोस्त कान खींचते रहे, लेकिन भाई नहीं, हमसे ये बात नहीं हुई। एक तो मतलब ये है, फिर लेफ्ट के अंदर के जी इत्तेहाद क्यों नहीं है, तो एक क्यों नहीं हो जाते हैं, एक नज़रिया है, एक फलां है, एक उसमें कहा है कि ये जो इसकी है ना, एक हो जाने की अयाशी छोड़ देनी चाहिए। उसके लफ्ज़ एक होने की एक ये जो हम करते थे, ये भी एक अटैक करते हैं ना लेफ्ट के ऊपर कि जी आप इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते, आप एक क्यों नहीं हो जाते। तो बात आज पहले भी ठीक है, आप कह रहा हूँ उस पर भाई ये इकट्ठे होने वाला कोई नहीं होंगे, बिल्कुल ये तयशुदा बात है। इकट्ठे होने का गैर साइंसी बात है। क्या लेनिन के दौर में बॉल्शेविक मैनिफेस्टो नहीं थे? क्या लेनिन के दौर में और इतने ट्रेंड्स थे? क्या 20वीं सदी के अंदर मुख्तलिफ ट्रेंड्स नहीं रहे? खुद ग्रामची जो हमें बहुत जिसकी रिस्पेक्ट भी है, उसकी जेल की, उसकी ज़िंदगी की, उसका नुक्ता नज़र से हम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें उसकी जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो उसकी और तरह है ना। ये सारी चीज़ें समाज में होती हैं। हाँ, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ मूवमेंट कमज़ोर है और ज़्यादा। हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत ताकतवर है ना, तो वहाँ तो 2 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 हुई हैं। तो ये कोई बात नहीं है, ये जिंदा एक बात है, जिंदा रहने की, यानी इसमें कुछ है ज़िंदगी। हाँ, कुछ मैंने अभी एक हफ्ता पहले एक मजमून लिखा है कि तरक्की पसंद कारकुन जो है वो जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, उन्हें विषयों ग्रुप है इस मुल्क के अंदर। हम नहीं कहते कि फलां पार्टी में चले जाओ, मेरे वाली पार्टी में चले जाओ, फलां चले जाओ, भाई उन्हें किसी न किसी जिसके साथ भी उनकी गुर्बत करीब तरीन बनता है वो चले जाएँ, उसमें जाएँ ताकि उनकी वर्थ भी जाओ। आज वो फर्क सड़क पे घूमता है, वरना उसकी एक तहरीक का हिस्सा बनेगा, तो उसको जाना चाहिए। और आइडियल सूरत कहीं नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि अवामी वर्कर्स पार्टी में कोई आइडियल सूरत है, नहीं, मैं नहीं कहता, मैं खुद उसका मतलब एक जिम्मेदार कारकुन हूँ, लेकिन आइडियल नहीं होती हर वक्त उसमें मैं कल हो के की है चीज़ें, तो उस पर हमारा हमेशा एक नुक्ता नज़र रहा, और उसमें बहुत कुछ मैंने लिखा अपने इंटरनल और चीज़ों को ओपन लिखा कि नहीं भाई ये नहीं होती। चलें, ये तो सारी वो चीज़ें हैं ना, करते हैं हम इसमें। तो हाँ, उन्होंने राना साहब ने बल्कि कल जब हम आ रहे थे ना, अमर आपके लाडले और हमजा साहब, हम तीनों इकट्ठे थे बेटा से करते, तो मैंने रास्ते में इन्हें कह रहा था कि भाई मैं आजकल इरफान हबीब को देख रहा हूँ, इंडियन, हाँ बहुत बड़ी है ना, उसका तो बस किया जाए। गन हमारे जब वो गांधी को जिस तरीके से बयान करता है, हमें हमारे दोस्तों को बहुत सौ का इख्तलाफ होगा, उसका एक नुक्ता नज़र है और वो उसको करता है। चले, वो तो एक मैंने सवाल किया कि मैं आजकल इरफान हबीब को आपकी हिदायत से देख रहा हूँ इसमें कर रहा हूँ इरफान हबीब। दूसरी बात यह है, ये बड़ी मोहब्बत के साथ है कि भाई जब हम कहते हैं कि हमें जो है वो बलूचिस्तान का नहीं पता, हमें केपी का नहीं पता, हमें सिंध का नहीं पता, अगर हमें
अपने साथ वाले घर का नहीं पता, तो वाकई बहुत अफसोसनाक और बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥਰੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ।